Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस व्हाट हैपेंड yesterday. Yeah. My God. The Sinhalese Cricket Club was entertained. Everyone in the world was entertained. Yeah, bro. I mean- क्या What a start to the T20 World Cup, right? क्या अजीब सा ही सीन हुआ है कुछ. क्या हुआ है कल? Conventional wisdom took the back door. ब्रो मैं सो के उठाऊं फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये क्या गेम क्या थी ये. Yeah, I mean, Pakistan won an unlikely thriller, right? And that too by 3 wickets and 3 balls to spare. वो थ्रिलर कहीं से होना नहीं चाहिए. बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था. अच्छा, we'll break this down for you. What the fuck just happened? Yeah, I mean, I suppose, Sadi, you could say that Pakistan harder than it's ever Pakistan before. Yeah. And I'll tell you why. Because Pakistan जो है ना वो जीते हुए मैच हारता है और हारे हुए मैच जीतता है. एक ही मैच के अंदर दोनों चीजें करना is insane. It's insane. और Yeah. किसी ने कल लाइव में लिखा भी था कि मतलब we've seen Pakistan do this before, but every time we see Pakistan do this, it's ridiculous. Honestly, international cricket without Pakistan would be very, very bland. It would be bland as fuck. कसम से. मैंने तो ट्वीट भी किया था कि Colonel Sanders' recipe has got nothing on this chaotic blend of flavors. ना bro. Yeah. कौन से 7 spices हैं bro? या भाई कोई 7 स्पाइसेस नहीं है इधर. जो भी पाकिस्तान क्रिकेट करती है ना वो नशा है. और फिर नशा है. मैंने तो उसका भी नाम रख दिया. अफीम अशरफ. अफीम अशरफ. अफीम राइट. अशरफ, क्योंकि yeah. राणा जी ने नशे तो करा दिए थे यार. हमसे खुद प्रोसेस नहीं हो रहा था सारा कुछ when we were doing the live. उसके बाद जो एनर्जी ड्रेन हुई है मुझे समझ ही नहीं आई हुआ क्या है यार. हाउ इज दिस पॉसिबल? Yeah, कुदरत का निजाम also, निजाम्ड hard. Or Kudrat nizamed hard for Pakistan, Yes. right? Like, because Max O'Dowd drops Rana for Holmes catch. हालांकि Netherlands were having a splendid day in the field. Really good. रोल ऑफ ने कैच पकड़ लिया था जो पकड़ता होता है वो Roll off जब तो Netherlands पकड़- जीतती है. हाँ, इस दफा पता. Yeah, I yeah. don't know bro. Yeah, I mean, not only did Max O'Dowd drop the catch, Klein injured भी हो गया साथ. हाँ. They had Bas Tedida bowling the last over, मगर वो राणा जी ने पूरा काम कर वो दिया था Logan भाई. Van Beek को Logan चढ़ा Van Beek को दिया. ठोक दिया था अच्छा खासा. खत्म हो चुका था Yeah, वही yeah. मैच. यार, I do not understand what Pakistan cricket is. Nobody in this world can predict what this team will do. No, you You're cruising to a victory. Cruising! absolutely cruising. मतलब कि less than run a ball पे गेम आ गई हुई थी. उसके बाद Wickets in hand. उसके बाद ये था कि यहाँ से तो ये जीत ही नहीं सकते. Yup. और फिर राणा जी थे ना. मसला difference between the two sides is राणा जी. But Yeah. difference between the world and Pakistan cricket is राणा जी. यार मजे की चीज ये थी कि they were so steady in that chase. It looked like they would get there in a breeze. हाँ, I mean they were what 61 for 2 after the power play. लोग कह रहे थे कितने ओवर में चेस करना है. हाँ, ये डिस्कशन हो रही थी कि तेज करो, नेट रन रेट का फायदा कराओ. But Pakistan were 61 for 2 in the power play. They were 90 for 2 after 10 overs. They required 58 to win of 60 deliveries with 8 wickets in hand, and yet एक पॉइंट पे आकर they needed 29 of 12 with 3 wickets in hand. पता नहीं क्या हुआ है. ये ठीक क्या है है यार? बस ये नशा ही है. नशा भी इतना कौन सा ये गंदा नशा है ब्रो. कल वो गार्गी का मुझे सुपर चैट आया ऑन कॉम बॉक्स कि उसको पैल्पिटेशंस हो रही थी इंडिया वाले मैच में. एंड आई वाज लाइक डूड वो तो पाकिस्तान. इजी मैच था ब्रो. हाँ शुरू में फंसाया हुआ था यूएसए ने. उसके बाद तो इजी हो गया. यानी खैर आई कैन अंडरस्टैंड कि टेंशन कहाँ हुई होगी, I'm मगर sure. पाकिस्तान फैंस तो बेचारे बूढ़े हो गए हैं पैल्पिटेशंस के साथ. कसम से हार्ट पेशेंट्स है. I aged like 5 years. और this is us जो हम कहते हैं कि यार हम वो वाले पाकिस्तान फैंस नहीं रहे. Yeah. हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं ना ब्रो. It just brings it out of you. Yeah, I mean, look, it is so entertaining ultimately. Right? कि you cannot take your eyes off the screen. And even for neutrals, it must have been mad entertaining, right? It was entertaining for them. It was heart attack station for us. खैर हम दोनों तो अच्छा ही कर रहे थे अपना लाइफ. अच्छा कर रहे थे. फटी हुई थी अंदर से bro. यहाँ से ना 3 घंटों में हमारा वर्ल्ड कप ओवर नहीं. हाँ, Pakistan could have potentially been knocked out of this T20 World Cup on day 0. And why I say day 0? Because this was the first game. First. Day 1 आधा भी नहीं हुआ था. Right? Yeah. So, I mean, look, यही खूबसूरती है suppose और फ्लॉ भी है पाकिस्तान क्रिकेट का. Flaw ही है. Yeah. वैसे But तो flaw ही है bro. वैसे what a great advert for T20 cricket. Yeah. The first day entirely. Yeah. All three All games three could have games been upsets. Yeah. All They three were- games were entertaining. There were times where in all 3 games the associate nations were ahead. Yeah. And everyone thought that they have a chance at winning it. वो हुआ नहीं. Neither of them did win it. But Netherlands भी ना जीत सकी. But I do feel कि this is why T20 cricket is the perfect format to grow the sport. हाँ. You bridge the gap between the good teams and the not so good teams. वो तो पता चल ही गया ना. Yeah. I mean 20 teams taking part in a
T20 वर्ल्ड कप जहां पे इटली क्वालिफाई कर रही है, स्कॉटलैंड तो खैर वैसे ही आ गई, बट दे वर दी हाईएस्ट रैंक्ड एसोसिएट नेशन अप अंटिल दैट पॉइंट जो नहीं क्वालिफाई किए हुए थे. बिल्कुल. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट. It absolutely is. और बाकी तो बस भाई build Rana Fahum a statue. हर ग्राउंड के बाहर राणा का स्टैच्यू. I think वो प्रिंस सेनेगलीज में सबसे पहले, हाँ, उसके बाद फिर गद्दाफी में भी लगाओ, इधर पिंडी में भी लगाओ, बिल्कुल. कराची पाकिस्तान के तो हर स्टेडियम के बाहर होना चाहिए. हैदराबाद न्याज ह्यूस्टन स्टेडियम अगर उसे कहना है उसके बाहर भी बनवा दो यार. Yeah, I mean, look, that guy deserves all the plaudits in the world. उसने literally bail out किए पाकिस्तान को from legit embarrassment. कसम से. ठीक है, इधर forfeit खेल रहे हैं, पहला मैच ही हार गए होते, खेलना पड़ जाता इंडिया वाला. ये सूरत हाल बन जानी थी. वो भी हारना ही है. हाँ, वो भी वैसे तो हारना ही है most likely. But yeah, I mean, look, Pakistan cricket is the gift that keeps on giving. और overall, this was a great chaotic day for T20 cricket और T20 World Cup का पहला दिन. इससे ज्यादा exciting मुझे याद नहीं कब हुआ था. Perhaps the first edition where South Africa chased down 200 plus versus the West Indies. That was a solid game. That was very very good. That was one way to announce a format, right? कि पहला वर्ल्ड कप, पहला मैच और ये हो रहा है. Oh my God. But I really hope Mike Hessen had a few stern words to share in that dressing room Mike yesterday, bro. Hessen को छोड़ो, सबसे पहले तो राणा जी को एक स्पीच देनी चाहिए कि क्या कर रहे हो भाइयों. हाँ, लितर मारने चाहिए राणा जी को. राणा जी को मारने चाहिए कि क्या हो गया, मैं क्यों आगे बचा रहा हूँ इस सिचुएशन से. फहूम स्वीट कह रहा था कि यार जब कैच ऊपर जा रहा था तो मैं कह रहा था या अल्लाह छोड़ दे, या अल्लाह छोड़ दे. छोड़ दिया मैक्सवेल आउट ने. वो बेचारा गालियां खा रहा है सोशल मीडिया पे. That's ridiculous. हाथ दे यार, किसी को नहीं छोड़ते. It's a game of cricket. उसने को जान के छोड़ा कैच. And it's a game of cricket, bro. And the Dutch were phenomenal in the field. They were spectacular. पागल हुए हुए थे. अजीब. स्कॉट एडवर्ड्स तब गया था जब कैच छोटा है, क्योंकि उसे पता था ये चांस जो है ना, और फिर वही चांस उन्हें लेड हुआ. बहुत ही हेवी भारी पड़ गया उनको. आई मीन लुक, it is a game of fine margins, and associate teams क्योंकि they lack the exposure and the experience and obviously a bit of quality as well, वो आकर इस तरह के मोमेंट्स में स्टम्बल कर देते हैं. एक आधी गलती उनको मरवा जाती है. तुम देखो वहां पे भी स्काई ड्रॉप हुआ 15 पे, and the USA dropped 3 catches over. हाँ, और फिर वो obviously that was Sky was the difference in that match. Was the absolute difference. वो जैरेड कह रहा था कि इस तरह की पिच थी, वो it was a tacky pitch, right? It was. Spin, bounce and I don't know वहाँ what में the hell. Sky चल सकता था bro. वो जो अपने कन्वेंशनल 360 है स्काई के लिए. हाँ, बाकियों के लिए नहीं है. उसके लिए कन्वेंशनल 360 गेम जो करके वो बचा सकता. बाकी टू दी कैजुअल आए तो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल है. हाँ, लेकिन स्काई के लिए दैट्स कन्वेंशनल. I mean, he scored a 36 ball 50 and an unbeaten 84 of 49. He literally got India out of jail. He was the difference. मैंने बोला अगर 130, 135, 140 तक स्कोर होता ना तो चेस हो सकता था. बुमराह खेल नहीं रहा था. आराम से हो सकता. Yeah. So I mean, thrilling day. Wow. And again, I really hope कि from a Pakistan perspective, there were some honest conversations in that dressing room. काफी इनको लेक्चर मिलने चाहिए. हर एक को मिलना चाहिए लेक्चर. Mike Hessen should be pissed. और मैं जो कह रहा था, जो सीनियर प्लेयर्स पे सारी चीज आती है, एंड पे देख लो सिर्फ उन सारे सीनियर प्लेयर्स में से एक राणा जी चले हैं, बाकी कोई भी नहीं चला. हाँ. नहीं, ये वो ऑलमोस्ट मरवा गए थे सारे सीनियर प्लेयर्स यार. हाँ, आप कह सकते हो ये बिल्कुल. शादाब, शाहीन, बाबर, नवाज, बाबर सब मरवा गए थे. They didn't have a good game. Salman Mirza had a good game. Abrar had a good game. साहिबजादा फरहान, साइम अयूब and राना फहूम. बस ये 5 लड़के खेले. हाँ, बाकी सारे सीनियर्स ने तो कुछ नहीं किया. जो मैं कह रहा था ये वर्ल्ड कप है उनके लिए. और जो शादाब खान आके कह रहा था मीडिया के ऊपर कि यार वी हैव टू डू दिस, हम सीनियर हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नजर नहीं आई. बिल्कुल भी नजर नहीं आई. Yeah, but खैर चलो, एटलीस्ट पाकिस्तान have managed to win this game. और मैंने कल लाइव में ही बात की थी. It's like the game that they lost versus the USA in the 2024, they've won this time around. It shouldn't be as hard moving forward because I do think the Netherlands is the best associate team in this group. Bro, अभी कल जो USA कर रही थी ना, ये भी है. मोहम्मद मोहसिन ने तो हमें खा जाना. भाई मोहम्मद मोहसिन के साथ हम फोड़ रहे थे कोर में. just a month ago. Yeah, literally like a month and a half ago, I think. और अब देखो वो रिंकू सिंह की विकेट ले रहा है 1 for 16 bro in 4 overs versus India. अभी हमारे अगेंस्ट भी ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस देनी है. हरमीत ने भी 2 for 26 ली है, which has convinced me कि if you are a finger spinner with the name, or if your name starts with harm and you're a finger spinner, you'll do good in India. हरमीत. और भी होगा कोई. वो अली खान भी वैसे बेचारा इंजर हो गया ना, हार्ड लक हो गई. हाँ, वो हार्ड. वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था. मगर 3 कैचेस छोड़ना, फिर इंजरीज भी हो गई. अली खान की इंजरी, शुभम भी इंजर्ड हो गया था. शुभम कैच ड्रॉप कर दिया, वो कॉटन बोल्ट स्काई का चांस. हम
बहुत ज्यादा वाइब्स वाला पॉडकास्ट है, जस्ट बाय द वे ये आपको बता दें। ये वैसी बोनस पॉडकास्ट आपको मिल रहा है, प्लान नहीं था। ये पाकिस्तान ने जो कल किया है ना, उसकी वजह से ये पॉडकास्ट मिल रहा है। नोमी भी हमें गालियां दे रहा था। आई थिंक लाइव शो के दौरान ही हमने ये बात की थी कि यार अब इस वाली गेम पे तो शो बनता है, कैंट नॉट रिकॉर्ड अ शो ऑन दिस मैच मैन। इनसेन स्टफ, मतलब प्रॉपर एज ऑफ योर सीट क्रिकेट, हार्ट्स इन माउथ एंड ट्रैशी क्रिकेट, और ग्रेट एडवर्ट फॉर द स्पोर्ट बट नॉट इन अ क्वालिटी पर्सपेक्टिव, राइट? इन एन एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव फॉर श्योर। बीच में थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी गेम, आई वाज लाइक, और जस्ट बाय द वे सिर्फ पूरी दुनिया में एक बंदा कह रहा था कि आराम से जीत जाएगी पाकिस्तान। जीत गई ना। आराम से तो नहीं जीती ना, 3 बॉलें हैं यार, बहुत बॉलें। अच्छा, यही मैं स्टोरी सादी को बता रहा था कि जब पार्ल वाला ओडीआई हो रहा था ना, where सलमान अली आगा कंप्लीट द चेस वर्सेस साउथ अफ्रीका, दिस वाज एट द एंड ऑफ 2024, तो मैं अपने मामू और भाई के साथ देख रहा था, तब साइम ने 100 मारा हुआ था, तो मैंने कहा था ओहो जीत गए, टेंशन ही नहीं लेनी, मैं बता रहा हूँ जीत गए, मेरी नौकरी है ये। और उन लोगों ने फंसा दिया। कल साद ने हरकत कर दी है, जीत दोनों था गई पाकिस्तान, हम ठीक थे मगर हम फिर भी गलत थे। नहीं, मैं कह के मुझे हो रहा था कि अभी पड़ेंगी मुझे गालियां, यहाँ से हारेगा पाकिस्तान, क्योंकि एंड में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा यहाँ से हारेगी पाकिस्तान, फिर सारे आएंगे। साथ भाई आप तो कह रहे थे ये, साथ भाई आप तो कह रहे थे ये। पाकिस्तान ने बचा, राणा जी जिसको हम इतना प्यार करते हैं, उसने मुझे भी बचा लिया और टीम को भी बचा लिया। नहीं, राणा जी वाज बॉक्स ऑफिस, द गेम वाज एब्सोल्यूट थिएटर, और दिस वाज अफीम अशरफ्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गेम ब्रो। यस सर, कभी वर्ल्ड कप ही नहीं खेला राणा फहूम। 2017 में डेब्यू था, आज पहली गेम है उसकी वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप। What a way to open your account, right? Unbeaten 29 of 11. लोगन वैन बीक को भी नींद नहीं आनी थी, मैक्स ओडाउट बेचारे को नींद नहीं आनी थी, और you know there were some performers in the Netherlands who really didn't deserve to lose. Like I think the best bowler of the day was Paul van Meekeren. Paul van Meekeren across both teams was amazing with his shoddy haircut. Yeah, very terrible haircut. पता नहीं, that is not even a mullet. पता नहीं वो लाइन ही है जी। अच्छा चलो, वर्स्ट हेयर कट से कंपटीशन में इस वक्त जो है ना, कूपर कॉनली वर्सेस पॉल वैन मीकरन है, कूपर वर्सेस वैन मीकरन। और लेकिन व्हाट अ स्पेल, या दैट वाज इनसेन स्टफ। एक पॉइंट पे डबल विकेट मेडन लिया, राइट? And 2 for 20 in 4 overs where he continued to bowl cutters at a hard length. He understood the assignment. वो बॉल बैट पे आ ही नहीं रही थी, ठीक है? It was a splendid performance by him. He's unlucky to, you know, miss out on a victory and end up on the losing side. Also, I think Scott Edwards kind of messed up in captaincy. Roloff had taken 1 for 13 in 3 overs. Should have bowled him out. Roloff is a slow left armer. पाकिस्तान को नहीं खेलने आते, और पड़ ही नहीं रही थी उसे। Roloff should have been bowled out. Roloff बेचारे को पूरा कोटा देना चाहिए था. He really deserved to have been bowled out, and Paul van Meekeren didn't do much wrong. बाकी in the field they were brilliant as well. Roloff took that catch. Except for that one drop. बस वही बात है ना यार, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ माइन मार्जिन्स। एक आधी गलती आपको फुल मेंबर नेशन के खिलाफ हरा जाती है। एंड आई डू फील फॉर द डच अ बिट, बिकॉज दिस वाज राइट इन द बकेट ब्रो, लाइक दे आल्सो बॉटल्ड इट। पाकिस्तान वाज ऑन देयर वे टू ए जनरेशनल बॉटल। इससे बुरा बॉटल मैंने नहीं देखा वाकई। मतलब 90 for 2 chasing 148, you need 58 runs in the last 60 balls, you've got 8 wickets in hand, you're batting till 8. सादी वहां से हारने वाली थी पाकिस्तान, और मुझे तब लगने लगा कि हार जाएंगे जब कोई 3 ओवरों में 33 रहते थे। मैंने कहा यार ये तो अब मुश्किल है, नहीं जीतते, क्योंकि the conditions were such. I think they were fooled big time by the grass on the field, by the way, 100%, or the grass on the pitch, sorry, not on the field. Field पे तो grass होता ही है। सलमान अली आगा ने बोला था इतनी ज्यादा ग्रास मैंने श्रीलंका में आज तक नहीं देखी। Opted to bowl first। और पता है ये हम देख रहे थे पीटीवी उससे पहले, जॉन सा भी चैनल, वहां पे भी कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि बहुत ज्यादा घास है, दिस दैट द अदर। घास अपेरेंट तो थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, और फिर पिच स्लो डाउन होती गई। हमारे बैटर्स तो वैसे ही केपेबल नहीं है स्लोइश पिच पे खेलने के। मिस रीड तो कर गए थे, एंड आई डोंट ब्लेम देम एंटायरली बिकॉज़ वी कुड सी द ग्रास एज वेल, बट सादी देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स वेयर देयर इज ग्रास ऑन द पिच एंड आई एम लाइक यार दिस माइट बी डिसेप्टिव। आई नो इट माइट बी डिसेप्टिव, लेकिन थोड़ा सा उनको एडवांटेज नहीं, लेकिन थोड़ी सी उनकी फेवर में बात करूं ना, ओवरकास्ट थोड़ी सी कंडीशंस थी, यू नो, रेन आना है, रेन ने आनी है। वो भी एक अलग ही कहानी थी ना, बारिश ना हो फिर हो जाए। फिर एक पॉइंट पे आया था यार वक्त जब Pakistan, had it rained, would have lost on DLS. That's how far behind they had, you know, fallen in the chase. तो वो भी था कि बारिश ने आना है, सही है ना? हाँ, बारिश ने आना है, बारिश नहीं आना है, बारिश ने आना है। क्लाउड्स भी आ रहे थे बार बार, ग्रास भी है पिच पे। I would have bowled first as well though. Yeah, I mean, when there is rain around, you expect that there'll be some moisture in the deck which your seamers can extract some perches off. पहले भी बारिश होती रही है उधर। काफी बारिश होती रही है, it's been fully covered. हाँ, पाकिस्तान का वार्म अप मैच भी हो गया था abandoned. Yeah, but खैर, despite the pitch looking like
a seamer friendly one from the get go. It wasn't really. It It was wasn't. a pretty good batting deck, honestly, in the first innings. हाँ वही best conditions to bat were in the first inning. Second half of the second innings, things did get really Yeah. tough. Ball bat पे आ ही नहीं रही थी. But Pakistan still, despite that, they bottled hard. यार मुझे At least for that period. नहीं मुझे समझ नहीं आती ठीक है आपको पता चल गया पिच थोड़ी सी मुश्किल हो यार गई मगर आउटफील्ड भी बड़ी तेज थी. Really fast outfield. outfield was Lightning amazing. quick. लेकिन मेरी बात सुनो ना आपको समझ आ गई कि यार बल्ले में नहीं आ रही यार गेंद आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेलो Yeah. खेलो निकालो सिंगल्स रन रेट तो करीब करीब आपके आउट ऑफ रीच नहीं है यार Yeah, यू Saib- हैव इट अंडर कंट्रोल Saibzada Farhan and Saim Ayub had in essence killed the scoring rate pressure. एज इन 58 ऑफ 60 बॉल्स नहीं आ रही बॉल आप आराम से खेलो यार Yeah. आप क्यों चौपीस और पता नहीं क्या कर रहे हो यार पता नहीं खैर क्या कर रहे थे but like even on a difficult Wow. surface you should be able to chase down 58 of 60 with 8 wickets in hand. stupid Yeah. stupid batting It was just proper comedy the way It was. Pakistan were It going was about things. horrible. I guess it's the double wicket maiden wala over Paul Van Meekeren का which changes things और फिर बाबर की wicket. which does change बाबर को तो छोड़ ही दो ना यार. क्यों मतलब कि क्या किया बॉय ने? ये वाले चेस एक्सेल करता है इस चेस के हम अंदर तो लाइव में भी कह रहे थे कि बाबर वी डोंट केयर हाउ क्विक यू बैट टुडे. You just need to get Pakistan over the line. यार वो उस टाइम पे वो शॉट विकेटें गिरी हैं अभी बाबर आजम को रखा ही इसलिए टीम में कि आके स्टेडी करेगा शिप एंड ही गोज ऑन टू प्ले दैट शॉट व्हाट इज रॉन्ग विद यू मैन हाँ मतलब कि यार इस दफा तो सिर्फ सिंगल्स ही चाहिए थे. He has been picked as a middle over spin negotiator who can just continue to keep the scoreboard ticking. कि ये strike rotate कर दे चलो. एग्जैक्टली वही करना था You are picked as a fail-safe batter कि when everything goes wrong at least we've got Babar, right? Adverse conditions के लिए, adverse day के लिए. यहाँ पे तो बहुत easy था scene. तो आके क्यों oh my god ये क्यों मार रहे हो शॉट पता नहीं यार क्या कर रहा था वैसे बॉबी. खैर, I mean others failed as well. उस्मान खान शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज इनकी वजह से ये मैच फंसा यार I mean- और किसी की वजह से नहीं फंसा ये चार बॉयज Yeah, इसमें Pakistan. सबसे ज्यादा बाय द वे ब्लेम सबसे कम ब्लेम मैं उस्मान खान को दूंगा हाँ बाकी तीनों को ज्यादा ब्लेम जाता है सही बात है क्योंकि उस्मान खान का तो सिल्वर डक था ना वो तो चलो आउट हो गया ठीक है गंदा आउट हुआ बहुत गंदा आउट हुआ है ही ये वो या बट फिर भी आई फील के बाबर शादाब एंड नवाज विद द सीनियर प्रोज एज वेल Yes, उनको तो that's- जिम्मेदारी उठानी थी यही मेरा आर्ग्यूमेंट है ना उस्मान खान का भी वैसे दूसरा वर्ल्ड कप ही है हाँ। बट देन अगेन उस तरह तो साइम का भी है बाबर साइम उसमें क्या ही उसकी थी वो उस्मान खान तो यूएसए वाली गेम में खेल रहा था खैर बाबर शादाब नवाज इतने अरसे से खेल रहे हैं सीनियर प्लेयर्स हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी रन चेस की इनके ऊपर आती है और ये लिटरली आपको हरवाने लगे थे मैच फॉर द umpteenth टाइम या आई मीन बाबर एंडेड अप विद 15 ऑफ 18 हाँ उसने फील्डिंग शानदार की होगी एंड विल गेट टू द फील्डिंग was really पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करेंगे दैट बाबर पैरिड कैच एंड देन टुक अनदर वन एज वेल उसको साइड पे रख दो द बैटिंग वाज अबिस्मल वो अगर फील्डिंग की वजह से जस्ट बाय द वे अगर फील्डिंग की वजह से ना टीम तो 12th मैन में वो आ सकता है फील्ड के ऊपर फील्डिंग की वजह से तो नहीं है ना टीम में सही कह रहे हो तुम आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू पेंट अ कंप्लीट पिक्चर हाँ, बट हाँ। आई मीन यू कैन नॉट डिफेंड द बैटिंग इनिंग्स अपने रोल में ही उसने बुरे तरीके से फेल किया इन अ गेम वेयर इट वाज एक्चुअली सूटेड फॉर बाबर द Yeah. चेस इट वाज राइट इन हिज जोन इन हिज व्हील हाउस एंड येट ही गोज फॉर दैट बैड अटैकिंग शॉट 15 ऑफ 18 पे आउट हो जाता है देन उस्मान खान गोज फॉर सिल्वर डक अर्लियर ठीक है नवाज scores what 6 of 13 शादाब scores 8 of 12 इनको टैली करो जरा आई नो थोड़ी ज्यादा मैथ हो गई है 6 of 13 8 14 रन ये हो गए हाँ। 25 बॉल्स 25 balls 14 runs किए शादाब नवाज ने 27 14 and 13 बॉल्स थी कितनी थी 25 ही बनती हैं अच्छा, 13 and 12 yes Nawaz is 6 of 13 Shadab is 8 of 12 so those guys score 14 of 25 बाबर के इसमें डाल दो तो बन जाती हैं 43 balls and you're still at 29 runs ब्यूटीफुल yeah रियली गुड गाइस 29 ही बनते हैं ना हाँ 14 में नहीं नहीं बनते 29 29 हो गए ऑफ 43 दा right bear with me हाँ 14 रन्स बनाए उसने उन दोनों ने और इसने 15 हाँ 29 29 और 43 और फिर दो बॉलें उस्मान खान की भी डाल दो सो उस्मान शादाब एंड बाबर कंबाइन फॉर 29 और 45 उस्मान शादाब बाबर नवाज हाँ उस्मान शादाब बाबर नवाज कंबाइन फॉर 29 ऑफ 45 ब्रिलियंट गाइस क्या कह सकते हैं रियली नाइस we're not doing player ratings today but these guys जीरो were चारों के लिए जीरो अब फील्डिंग पे कुछ मिल जाए नहीं मिल रहे थे नहीं उसका प्राइमरी रोल नहीं है वो हाँ सही बात है और ये रन चेज इन चारों के लिए
आराम से होना चाहिए था, सबको 0 मिल रहे थे। Yeah. Baki cousin Sal made a mistake in captaincy as well. Yeah. He introduced Saim Ayub far too late and he only pulls a solitary over जिसके अंदर Saim takes 2 wickets. यार Goes for 7 runs, बहुत- takes 2 wickets. Why have you not bowled Saim Ayub earlier? इस तरह की पिच पे वो बहुत इफेक्टिव है क्या- यार। आई स्वेयर टू गॉड, मैं उस वक्त कह रहा था पावर प्ले में नवाज की जगह इसको एक ओवर दो, और- उसके बाद फिर हम कहे जाने अब ले आओ, अब ले आओ, अब ले आओ। 15वें क्या 14वें ओवर में जाके आया ना। बहुत लेट आया है. He bowled like a death over or something, right? हाँ In हाँ essence. डेथ में 15 या 16th over शायद कराया उसने. It was quite harrowing to see that there's a guy who's in form, who's incisive. You need wickets. You need to end the Netherlands. आप साइम को जल्दी लाओ ना, आप विकेट ढूंढो. और पता है नवाज पिट रहे आज. Yeah. It's not even a good day for Mohammad Nawaz. You use Saim Ayub, man. So वो काफी disappointing था मेरे लिए from Although a captaincy perspective. नवाज गॉट 2 विकेट्स, लेकिन वो पिटा है यार। हाँ पिटा तो है. Plus I also acknowledge that Scotty Edwards makes a mistake when he Yeah. doesn't bowl out roll off. So If someone has taken 1 for 13 in 3 overs and he's a slow left armer, you bowl them out versus Pakistan. स्लो लेफ्ट आर्म वर्सेस पाकिस्तान, दोनों कैप्टन्स की एक मिस्टेक है ये बॉलिंग चेंजेस वाली। फील्डिंग में आई थिंक नेदरलैंड्स वर एक्सेप्शनल, पाकिस्तान वाज हॉट एंड कोल्ड। व्हेन दे वर हॉट दे वर रियली हॉट, Yeah. व्हेन दे वर कोल्ड दे वर कोल्ड। I mean, there were some exceptional कह लो moments of यार brilliance. वो जो पैरी कैच था बाबर और शाहीन वाला, मैंने नहीं पाकिस्तान को ये करते हुए देखा। I don't think I've ever seen Pakistan do that. एक छक्के आता रोके तो- हुए हैं हाँ। और PSL में देखा हुआ है, हाँ। मगर पाकिस्तान के अंदर मुझे याद ही नहीं आ रहा कब मैंने देखा हुआ है, और बहुत स्प्लिट सेकंड था Split बाबर के second, पास. yeah, So that that was was really great good. work, and you're right to say that they were hot and cold because either there were some moments of brilliance or they were completely shitting the bed, Yeah. right? क्योंकि obviously you उस्मान know खान का अच्छा कैच था, सलमान अली आगा का अच्छा सलमान catch अली था। आगा did well. Babar took 2 catches. हाँ। Usman Khan ने with the gloves अच्छा catch पकड़ा था. साहिबजादा फरहान made amends later for some lazy fielding. साहिबजादा फरहान की लेजी फील्डिंग थी, एक ओवर थ्रो भी थी बीच में। हाँ वो ओवरथ्रो पे रन बन गया था. सलमान मिर्जा's misfields, Yeah, that was those were pretty poor. That was very bad. शदाब बेचारे साथ अनलकी सीन हो रहा था कल with the ball. With the बैटिंग में तो कोई डिफेंस नहीं है. my god. बैटिंग में तो हक कराया वो सही है, बट विद द बॉल शदाब एंड्स विद नन फॉर 26 और उसमें यार एक दफा नोमी पॉइंट्स लैंड में गिर गई थी बॉल. एक चौका निकल गया था वो सलमान मिर्जा की मिसफील्ड पे, और एक इसने खुद कैच छोड़ दिया. हाँ, तो फिर वो भी तो है ना. तो वो खुद अनलकी तो और दैट वाज अ वेरी इजी कैच हाँ. फॉर शदाब खान स्पेशली. कॉट एंड बोल्ड अपॉर्चुनिटी. स्कॉटी एडवर्ड्स, वो भी एक डिफरेंस था स्कॉट एडवर्ड्स, फिर उसके बाद अच्छे खासे रन बना के गया। हाँ आई मीन आप जल्दी खत्म कर सकते थे नेदरलैंड्स बहुत को. जल्दी खत्म कर सकते थे और शायद इतना ना फंसता मैच, आपकी अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ। Yeah. So I feel like they did more or committed more mistakes. Committed is not the right word. Made more mistakes in the field as opposed to those moments of brilliance. वो भी थे. And the Babar catch is spectacular जो उसने शाहीन को पैरी की है. Because Estelle was telling me, she was there. Yeah. ठीक है. कह रही थी what you don't see or might not have been able to see on the broadcast हाँ, TV पे. इसके Babar covers a lot of ground. अच्छा, ब्रॉडकास्ट बाय द वे इन सिनेलीज का एक बड़ा मसला है कि उसके कैमरा एंगल जो है ना, जिस तरह हम यहाँ पे पिंडी में या कराची में देखते हैं, वो कैमरा एंगल्स बड़े अजीब से थे, हमें सब कुछ सारी पिक्चर नहीं मिल रही थी। नहीं। और कैमरा वर्क वाज शॉर्टी एज वेल। Yup. I mean, उस थैंक यू वक्त तो- एस्टेल फॉर दिस इंफॉर्मेशन। Yeah, Estelle was quite key with that, but we didn't even know it was a wicket or a 6 or what. नहीं पता हमें चल नहीं रही। समझ आई वहां आधी पे. चीजों का नहीं पता चल But the fact that he covers all that ground, Babar Azam, and then completes the parried catch. देखो बैटिंग में तो कोई कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा वहां पे, तो the pressure is only mounting. माय गॉड। अच्छा वैसे you know बाबर पे मुझे फिर समझ आता है कि लोग इतने तपे हुए क्यों हैं. शाहीन पे इतना तप के हो यार. ठीक है गंदा मैच था उसका, he didn't bowl well at all. यार मैं पता मगर अभी एक ही तो मैच हुआ है. मैं पता हूँ क्यों तपे में हैं लोग शाहीन पे, क्योंकि दूसरी साइड पे सलमान मिर्जा जो अभी आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, शाहीन हु हैज बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग was very poor with his lines, Yeah, with Shaheen. his game plan. That's why people were pissed off. Shaheen kept straying down the pads over and over again. कंट्रोल नहीं था और उसके Yeah. पास फिर पिच को उसने रीड नहीं किया ना बेराम। हाँ. लोग इसलिए तपे में क्योंकि Yeah. सलमान मिर्जा फिगर्ड इट आउट, Yup. पॉल वैन मीकरन फिगर्ड इट आउट, शाहीन अफरीदी डिड नॉट फिगर इट आउट। Shaheen was going or searching for some swing Yeah. and going for the fuller end deliveries. कर लिया आपने पहला ओवर। Yeah, he kept missing his radar. Leg glance पे चौके खाई जा रहा था. ठीक है वो. He was really poor. He was terrible in the power play. None for 23 in 2 power play overs. He was really poor. Comes back to bowl a decent over at the death. Ends with 1 for 28 in 3 overs. Problem. Not a good day at the office for Shaheen Not a Shah good Afridi. day. Not पहले 2 ओवर were horrible यार। Yeah. तो मैं समझ सकता हूँ कि आप criticism करो उसकी, but surely you can't be saying कि Shaheen Shah Afridi needs to be chucked out of the starting 11. नहीं, लोग तो कहेंगे वो तो फिर एजेंडाज है। पता नहीं यार, इतना भी रिएक्शनरी होना चाहिए. बाबर का तो काफी देर से ट्रेंड नजर आ रहा है. There's been one success at number 4. वो सक्सेस भी मैं यही समझता था कि that unbeaten 50 of 36 might be the top end of Babar's performance at number 4.
Do you think I mean, he will play the next match, but do you think he should play the next match? यार I think he probably will play the next match. Do you think he should? एक और दे के देख लो, मगर एक और ही देख के देख लो बस. मैं तो कहता हूँ 15th वाला दे के देखो. अच्छा, इंडिया वाला वो होगा नहीं ना. वो पता नहीं, बैक चैनल टॉक्स तो चल रही हैं, शुरू इस हो वक्त गई. हमें नहीं पता वो मैच होगा कि नहीं होगा, मगर क्या पता हो ही जाए. ना ही होए. या वो इट विल बी अ टफ वन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एक्सप्लेन दैट. हाँ, देखो फिर ना लेते ना ये डिसीजन. श्रीलंका ने अपेरेंटली थोड़ा प्रेशर डाला हुआ है मेरा कि हमारी इकोनॉमी सफर करेगी, होटल बुकिंग्स हो चुकी हैं और देयर इज एन एंटायर इंडस्ट्री दैट गोज अराउंड दिस गेम, पैसे बनते हैं. आई नो. मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान फिर अगर डिसीजन वापस लेता है ना तो फिर अच्छी बात नहीं है. या तो पहले ही ना लेता तो हम सपोर्ट करते. इतनी बड़ी बड़ी भड़के मत मारो फिर. हाँ, एक दफा कर दिया तो फिर वी स्टैंड बाय the word you say, right? Otherwise you're going to continue to be a laughing stock, and already a mockery has been made of this game through political point scoring and political interference across the board. Yeah. ठीक है, आप अब क्या मतलब फिर कुछ लिया फैसला तो फिर कर लो. I mean, it probably does offset Pakistan a bit, क्योंकि based on their performance yesterday, हमें क्या पता है USA और नामीबिया वाली गेम्स कितनी क्लोज होती हैं. मुझे तो लगता है काफी क्लोज हो सकती हैं. USA वाली तो होगी. USA वाली तो बिल्कुल हो सकती है. मोहम्मद मोहसिन कहीं पाकिस्तान को ही ना लड़ पड़ा. लड़ेगा. अली खान फिट हो गया तो वो भी लड़ेगा. हाँ. नेटरवालकर ने तो लड़ना ही है हमें. नेटरवालकर कल बहुत कुट पड़ी है. तो 65 रन्स खाए हैं इन 4 विकेटलेस ओवर्स. मैं पाकिस्तान वर्सेस यूएसए में देखूंगा कितने खाता है. अब भी इसे बता रहा हूँ, नहीं पढ़नी है. हालांकि यार नेटरवालकर तो मतलब होम कमिंग थी उसके लिए. मैं बता रहा हूँ उसे नहीं पढ़नी नेक्स्ट मैच में. अल्टीमेटली दोस गाइज आर आल्सो एम्प्लॉइज इन टेक फर्म्स, डे जॉब्स तो उनकी ये हैं. पता नहीं उसने कोई ऐप शैप भी बनाई हुई थी, क्या बनाया हुआ था उसने, कोड क्रिकेट समथिंग लाइक दैट. बट एनीवे वो तो तब की तब देखेंगे जब यूएसए वाला मैच आएगा. ऑफ कोर्स उस लाइव हम लाइव होंगे. बट पाकिस्तान अगेन शुड लुक एट दिस एज समथिंग दैट दे हैव सर्वाइव्ड. They have survived. Learn from this. Escape. Great escape था. The great escape inspired by Rana Fahum, जिसको मैंने कॉइन किया था. He is the security of Pakistan cricket team. He came in clutch last night तो नहीं था, last day. I mean, Mike Hesson is pretty firm on his 8-3 philosophy that he wants to battle 8, and this game is proof that his philosophy holds. It works. Yeah, it works. आपके पास और कोई तरीका नहीं है. You need to fit in an extra batter in there. बाकी दुनिया भी ये कर रही है, मगर पाकिस्तान के लिए शायद और भी pertinent है. यार लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई. When you bat till 8 and Rana Fahum at 8 is a very very good option to have. तो फिर आपके टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, ठीक है, आपके मिडिल ऑर्डर को इतनी टेंशनें क्यों होती हैं यार? ये डर क्यों जाते हैं आप? यू बैट टिल 8 यार. Yeah, I don't get it either. I mean, I still can't wrap my head around the fact that Pakistan were 61 for 2 after the power play and 90 for 2 after 10 overs. It should have been game over. खत्म. वही वाली बात है ना कि Pakistan have a knack of losing games from impossible situations where the game is totally won, and then winning games from impossible situations as well where the game is totally lost. Both of those things happen in the same goddamn game. ठीक है, this is not recency bias. They did Pakistan harder than they ever Pakistan before. Recency bias आता नहीं, क्योंकि this was something that we've never seen Pakistan do. अजीबो गरीब सीन था. रॉब बैरन बता था कि पाकिस्तान odds to win went down to like 14% at one point, and from there they won it. Impossible situation से फिर जीत भी गए. क्या है अब ठीक है, उसमें Max O'Dowd's drop catch does matter. That catch is essentially why Netherlands lose. वरना खत्म था. राणा जी आउट हो जाते तो कौन करता? शाहीन तो नहीं कर सकता ना ये जो किया था. तब राणा जी 7 पे थे जब ड्रॉप हुए थे, and then he ultimately ends with an unbeaten 29 of 11 and the player of the match award. और फिर साथ फिर मजे की स्टोरियां भी सुना गए कि यार मैं तो कह रहा था कि बस छूट जाए किसी तरह, या अल्लाह छूट जाए, कैच छूट गया वो. लेकिन राणे ने एक बात की, कहता है यार दिस इजंट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन इन दिस पोजीशन. यस, मैं तो काम था. ही इज लिटरली ट्रेन्ड फॉर दिस पोजीशन. दिस इज हिज जॉब. दिस इज योर जॉब राणा जी, क्योंकि आपने ओवर तो करवाया नहीं. मगर राणा जी ने फिर अपने कल्ट स्टेटस को वैलिडेट कर दिया ना यार. फिर हम एमी तो नहीं कहते ना, राणा फखूम एमी तो नहीं नाम दिया. एमी तो नहीं, हमारे दिलों में बसे हुए वो पोस्टर आ रहा है. आएगा पक्का आएगा. और अब तो मतलब मैं खरीद रहा हूं पहले प्री ऑर्डर. आई डोंट इवन केयर व्हाट इट लुक्स लाइक. आप लोग भी प्री ऑर्डर कर दो भाई. मैं मजाक नहीं कर रहा when I said कि it was proper like नशे वाली परफॉर्मेंस. मुझे वाकई नशा हो गया था. I was like, how is this even happening? हमने दोनों फहूम वाले गाने भी गा दिए. And the way he clubbed Logan Van Beek over क्या कहते हैं mid wicket for those 2 sixes. Proper clubs ही मारे थे उसने. And then there was this muscle over long off for 6. Van Beek के खिलाफ उसी ओवर में 3 छक्के यार सादी.
यस सर बहराम, एक मजे की बात बताऊं, मैच फंसा हुआ है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान हैं। 99 for 3 in 10.3 overs न्यूजीलैंड, 83 of 56 required. Damn, bro. Chappers and Cyphers. I mean, it जल्दी could go खत्म करके anywhere. देखना है जाके। या ये पक्का देखना है। बट हाँ, एक कतरी पे चौका भी निकला राणा जी का। वो चौके राणा जी के ही निकलते हैं, क्योंकि पक्के। पूरी इनिंग्स में वो वाला चौका नहीं निकल रहा था पाकिस्तान बाकी का। सबसे तो टच ही नहीं हो रही थी वो वाली बॉल, राणा जी ने किसी तरह थर्ड मैन पे चौका निकाल और दिया। वैसे जस्ट बाय द वे, मैंने बहुत दफा देखा है राणा जी की इस तरह की कतरियों पे चौका निकलते हुए। सो जो फील्डिंग साइड है इन द डेथ ओवर्स, थोड़ी सी जो अपनी फ्लाई स्लिप Yeah. टाइप पोजीशन रखो, फाइन करो उसे। फ्लाई स्लिप रखो ब्रो, मैं Yeah, बता yeah. रहा हूँ वहां पे निकलेगा क्या। सही कह रहे हो तुम, राणा जी को तुम लोगों को टिप्स दे रहे हो राणा जी का आउट। अब मैं ऑब्जेक्टिव हो के करेंगे ना हम ये, ऑब्वियसली। फीम अशरफ साहब बदतमीजी नहीं करनी तुमने। बदतमीजी तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। Yeah. तुमने उसके मुंह पे जाके जो बोल दिया था ना, साथ कह रहा है आपको निकाले इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मैंने कहा यार खैर तुमने तभी अपॉलॉजी फॉर्म भर दिया था। दैट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन वी sang द राणा फहूम सॉन्ग, क्योंकि मैं फिर भी कहता नहीं यार, पता है काफी यूटिलिटी है बॉय की। आई वाज लाइक एक दो मैचेस बिठाओ, इसने राणा जी के मुंह पे जाके बोल दिया। ये कह रहा था कि आपको बिठाएं, मैंने कहा यार खैर राणा जी भी मुझे यूं करके देखने, मैंने कहा सॉरी यार। फहूम बड़ी फील्स में देकर गया था वो इंटरव्यू। इट्स अ सॉलिड वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज वी हैव डन। That was so much fun. Yeah, that was a lot so of much fun. But हाँ, then obviously he kills the game in the penultimate over. फिर आकर जब लोगन क्या कहते हैं, लोगन वैन बीक नहीं, what's the other guy, बास्टेलिडा. बास्टेलिडा He has to bowl the last over because Klein is Klein injured. is injured. वो फिर full toss करा दी. वहां पे क्लाइंट को Yeah. भी पड़ जानी थी, वहां से नहीं हार रहा था True. पाकिस्तान। But उसने भी full toss करा दी, राणा जी ने पेल दी. It was an aerial 4 in the point region. Pakistan won by 3 wickets and 3 balls to spare. No one could process what has happened. कि हमने देखा क्या है, ये क्या चीज हुई है अभी हमारी आंखों के सामने. अगर आपने हमारा लाइव मिस किया है ना, मैं नहीं कह रहा पूरा लाइव जाके देखो, लेकिन वो लास्ट वाले मोमेंट्स देख लो, हम खुद परेशान थे क्या हो रहा है। और मतलब पता है कि टाइम भी नहीं मिल रहा था कोई भी फीलिंग्स प्रोसेस करने का. ओके, दे हैव बॉटल्ड इट, इट्स अ जनरेशनल बॉटल, देयर वर्ल्ड कप इज ओवर. हमें उस वक्त गुस्सा भी नहीं, हम हंस रहे थे जब वो बॉटल कर रहे और थे। पता है, फॉरगेट द होल पाकिस्तान जीते क्योंकि पाकिस्तान फैंस ऑफ व्हाटएवर, ठीक है, जब जीती पाकिस्तान हमें खुशी होती बहुत है, ज्यादा बट खुशी जस्ट हुई। टू काइंड ऑफ गिव यू सम पर्सपेक्टिव, इफ पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम, इट्स अ फाइनेंशियल हिट फॉर माय सेल्फ एंड साथ. वो वर्ल्ड कप नहीं देखना लोगों ने, नो वंस गोना ट्यून इन फॉर दीस लाइव्स मैन. हम क्यों आते लाइव? नहीं आ तो जाते. नहीं आना तो था, लेकिन हम क्यों आते? कोई एक रीजन होता है ना लाइव आने का। Yeah. लोगों ने भी नहीं आना था, कोई कुछ भी नहीं होना था। खैर, वर्ल्ड कप खत्म हो जाना था ब्रो। राणा जी बचा गए. राणा जी बचा गए, राणा जी इटर्नली ग्रेटफुल। उनके छत पे बहनोई जो सो जाता है ना, ये फिर बाकी सब सफर करते हैं. और वो बड़ा मजा आया व्हेन आई मेड द, और व्हेन आई ट्वीटेड द अफीम अशरफ ट्वीट, नीचे एक कमेंट आया हुआ था कि नेदरलैंड्स आर क्रिमिनलाइजिंग द ड्रग एज आई टाइप दिस. नाइदरलैंड्स ही थी, कल कह दिया ना वसीम भाई ने. फिर अब मान लो हमारी बात है, हम मान तब से लिए। कह रहे हैं, 2009 से मैं सुनता आ रहा हूँ नाइदरलैंड्स. नाइदरलैंड्स ब्रो। Yeah. अब कल सारे शुरू हुए विद ट्विटर पे नाइदरलैंड्स है? हाँ, अब देख लो फिर. देखो फिर We were ahead of the 8 ball. एज ऑलवेज। Yeah. Anyway, बाकियों की भी बात कर रहे थे. कजन सैल की एक वो गलती थी बस. Should have introduced Syme way earlier. Should have bowled Syme more. Gave Syme a solitary over. वो तो ले गया 2 विकेट. He conceded 7 runs and took 2 आई wickets. स्टिल फील उसकी एक और गलती थी जहां पे उसे राणा जी को ओवर देना चाहिए था। ये उस तरह की पिच थी, पॉल वैन मीकर ने दिखाया ना, राणा जी करवाते हैं बैक ऑफ द लेंथ और अपने कटर्स और अजीब सी बॉलिंग, वहां पे चलना था राणा जी। बाकी बैटिंग में I wouldn't fault him too much. His 12 of 8 was fine. मतलब ठीक है, हमेशा नहीं चलेंगे. Right? हाँ, Like, of course, it's a failure. But he didn't kill the momentum of the game. That's what Babar, Shadab, Nawaz and, you know, Usman क्या ही, खैर वो 2 बॉलों पे आउट हो गया, but you know what I mean. लेकिन बैक टू बैक थी ना, बैक टू बैक विकेट्स। Cousin Sal didn't cripple Pakistan. Yeah. Those guys kind of did. So batting में तो ठीक है यार, उसको बैटिंग जाने में देते. 3 है यार, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब एंड देन ऑब्वियसली राणा जी। फहूम की तो हमने बात कर ली है. बाकी Syme I think was great overall. Syme was really good Plus knock with the bat, 24 of 13. and was really good with the ball. Yeah. Should have bowled more. Really should have bowled more. पता है कि सारे राइट हैंडेड बैटर्स हैं नेदरलैंड्स के यार. इसके पास कैरम करवाने के लिए फेंको. और कैरम बॉल काफी स्पिन भी ली है कैरम बॉल ने, और फंसी है, बिल्कुल फंसी है. The pitch was progressively getting slow as the game went on, right? Syme को आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करना चाहिए था. He just bagged 12.5 crores in the PSL. उसका अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही अप था. यार वैसे मुझे बताओ 12.5 करोड़ थोड़ी सी PSL वाले उस पे, do you think it's worth it for Syme? I think that the fact that he bowls the carom ball makes it worth it. I think he deservedly got what he deserved. If he was just one of those part-time off spinners who can turn the ball in one direction, मैं कहता नहीं फिर नहीं बनते. But because he doesn't have the matchup issue, right-handed batters को carom ball, left-handed batters को conventional off break, and then an explosive and dynamic batter. वो भी top order batter. वो भी lefty.
बहुत चीजें हैं। and a great fielder Yeah, and potentially your future leader. yeah, he could be a leader someday, right? Perfect. Groom करो उसको। नहीं अभी I don't think और I think he can be the captain for Hyderabad. हाँ बिल्कुल बन सकता है। आई मीन स्मजर कुड बी एज वेल। नहीं स्मजर नहीं, वो तो Smudger मार्नस फिलहाल लेकर बैठे हुए हैं। यार ये वाली बातें मुझसे आज मत करो। नहीं मैं साइम अयूब की बात कर हाँ। रहा था। I think he could be a potential captain. He for could them. because they don't really have another potential captain वो in तो there। खैर अभी लेंगे। कल कोशिश करेंगे आपके लिए पीएसएल का एक शो करने के लिए। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा चीजें एक वक्त पे हो रही इतनी है। ज्यादा चीजें हैं और भी शूट्स हैं, सब कुछ टाइम देखिए। We've really been trying to scramble। अगर कोई आधे पौने घंटे का शो निकल आया तो निकाल लेंगे। बाकी फरहान also did well। फरहान was good. Yeah, फरहान yeah. was good. Farhan's 47 of 31 was perfect with respect to the game। I think 148 के चेस में सही खेला है वो। I think फरहान ने अपनी जॉब से ज्यादा करके खत्म कर दी थी हाँ game। हाँ, वो तो यही सोच कर आए होंगे। हाँ खत्म। साइम फरहान सोच रहे होंगे अच्छा यार we've killed the game in the power play, now they just need to knock it around, run a ball। पाकिस्तान couldn't even knock it around properly। एक पॉइंट था डॉट सिंगल विकेट सिंगल डॉट विकेट सिंगल डॉट विकेट, यही इस तरह का ही ट्रेंड चल रहा था। और आप सोच रहे थे कि, और मैं साथ को बार बार कहता सादी, मैंने कहा इनको एक चौका चाहिए। they need a boundary to release the pressure। वो चौका आया ही नहीं end आया तक। वो चौका, बस राणा जी नहीं मारे हैं वो चौके। उस्मान खान, शादाब खान और नवाज ने तो कुछ चौके नहीं मारे। बाबर ने एक गंदी सी लेग ग्लांस मारी है फ्री बी पे, चौका गंदी नहीं थी मगर यू गेट द ड्रिफ्ट। बहुत ही वो कोई भी बैटर मार ले यार, इतनी फ्री बी थी वो दैट ही जस्ट हैड टू ग्लास इट अवे फॉर 4। सो आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट वाज अप, बट नेदरलैंड्स के जो है ना इनिंग्स ब्रेकडाउन, उनका फेस ब्रेकडाउन। उनका कोई इतना वो स्पेशल नहीं था। दे हैड अ गुड पावर प्ले। हाँ ठीक है। Levitt was good. Levitt looked good. Levitt looked solid, that He guy was levitating. Yeah, levitating। ना। Anyway, वो पसंद आया मुझे, although spin को शायद ना खेल सकता हो, पेस को मार रहा था। खैर अभी क्या ही देखें। शाहीन को तो पेल दिया था ना उसने। अभी क्या देखें। Yeah, but the Netherlands started off really well, 50 for 2 in the power play, which they is were- good। they were really At the 10 over mark, they were 79 for 3। 15 over mark पे तो बहुत फंस गया था, they were 123 for 4। And at that time I was saying Saad is 170 on। फिर आकर पाकिस्तान and Saim Ayub, डेथ में। yeah, and Salman Mirza, they kill Netherlands off। They were bowled out for 147 and 19.5 And we overs। were like, I was like, ये तो इजी चीज है, 14-15 ओवर में कर लेंगे आराम So they still did well with the ball। कप्तानी में कुछ गलतियां थी, बट कुछ रिकवरी मार ली बॉल के साथ। नवाज 2 for 38, हालांकि पावर प्ले में अच्छा ओवर कराया था। हाँ नहीं 1 for 5 इन द पावर प्ले, Yeah। आकर विकेट भी निकाल ली थी। उसके बाद कंट्रोल भी नहीं था उसका, यार, बैक ऑफ द लेंथ किए जा रहे Continue to just bowl short and wide, Short and wide। short and wide, short and wide, short and wide। आकर मारो कट, वो उसके लग रहे थे क्या नाम है, बास डिलीडा के कट, उसको पिलाई जा रहे हैं कट। और मैं कह रहा था इसको फ्रंट फुट पे ले गया हो यार, Yeah, थोड़ी फ्लाइट दो, कुछ करो, फंसेगी बॉल। वो तेज डार्ट्स मारी जा रहे शॉर्ट एंड वाइड। yeah, That wasn't impressive at all. Yeah, Wasn't yeah। impressive at all. and I mean ultimately तो खैर obviously Nawaz isn't the biggest culprit, although he is a big culprit in yesterday's game, but he's been a man in form, you expect him to do better। और वो तो अभी कह रहा था कि मुझे मौका मिले कि मैं कुछ कर दिखाऊं। शादाब कह रहा था कि अब हम कुछ कर दिखाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। I am all for, I love the fact that there's responsibility and accountability on display, मगर कल कहाँ थी? मुझे सबसे ज्यादा मसला ये, you've been at it for an eternity यार। इतने अरसे से हो टीम में, इतने सीनियर प्लेयर हो, इतने वर्ल्ड कप्स खेल गए हो, अब क्यों ये गंदी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं? क्या मेंटली मसला है, क्या मसला है? यार फट तो गई थी इनकी, फट गई थी बिल्कुल। Yeah, I don't know why, because they had no task in front of them। Again, I keep reiterating, 58 of 60 balls with 8 wickets in hand। This game should never get pussified। Pussified? क्या है यार? Impossible situation से नेदरलैंड्स वापस आई है, कसम से। ठीक है, और फिर हम इम्पॉसिबल से वापस आए। और फिर हाँ इम्पॉसिबल तरीके से नेदरलैंड्स हार भी गई है। तो इट वाज ए कंप्लीट पाकिस्तान कोडेड गेम, एंड लाइक आई सेड, आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड क्रिकेट वुड डू विदाउट पाकिस्तान। I don't know, bro। ये वाले फ्लेवर्स कहां से लाओगे तुम? नहीं, वैसे फ्लेवर्स की बात जहां तक है समझ नहीं आ रही, मीठ है, स्पाइसी है, चटपटा है, क्या है? वो जो ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बो भी बना हुआ था ना, वो भी बड़ा फिट लग रहा था। नहीं, किट अच्छी लग रही थी वैसे पाकिस्तान। सिवाय वो छींटे अगर ना डाल देना, छींटे बहुत ऑफ है। छींटे बाकी इट्स अ नाइस शेड ऑफ ग्रीन, थोड़ा आयरलैंड शेड ऑफ ग्रीन है। थोड़ा, किसी ने सही बोला था, मार्कोर भी ठीक लगा था, मगर डची सी किट के सामने कोई मुकाबला नहीं है। what a किट तो वो है, फिर कोई खरीद दे हमें, हम जानी बना देंगे 2 साल के लिए। बाकी भी सारे जानी शानी बनो, ऑल दैट स्टफ। या पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना इजी पैसा 031936022545 जानी बन जाओ। फैंटेसी एंड प्रेडिक्टर्स वहां पे शुरू हुए हैं यार डिस्कॉर्ड में। आज मैं पूरी वो तकरीर नहीं करूंगा नहीं करनी एक्सक्लूसिव जरूरत, सिव वाली, क्योंकि ये इम्प्रॉम्प्टू फील्स पीस है। फील्स पीस बना दी है मैंने, फील्स पॉडकास्ट है। तो इतनी जो लंबी कहानी बांधी है तो वही कर लेते। चलो आज कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे। अच्छा नहीं खैर, अब्रार वाज गुड।
Abrar was You got to give him some flowers. Abrar was really good. Yeah. Aker, he got Ackerman to chop on his sixth delivery. Abrar was really good. Yeah. फिर Scotty Edwards की भी विकेट तो Yeah. Abrar ने ली, and that's a big wicket. हाँ, उसके बाद उसके बीच में जो रॉन्गन्स थे वो Yeah. बहुत तंग कर रहे थे उन्हें. नहीं पकड़े जा रहे थे भाई अब्रार के रॉन्ग रन्स, एंड सेलिब्रेशन भी नहीं मारी अपनी उसने. I still think उसको थोड़ा जल्दी बॉलिंग करवा लेते. Yeah. बहुत पता नहीं. I wasn't. In hindsight तो उजी तारिक should have played. अब अगर Yeah. वो सलमान मिर्जा की जगह खेलता है, सलमान मिर्जा didn't really put a foot wrong. Both of these guys were Pakistan's best bowlers, right? Saim का over 2 for 7. फिर अब्रार 2 for 23 in his 4 overs, Yeah. gets 2 big wickets, Colin Ackerman and Scotty Edwards. yeah. और सलमान मिर्जा really impressed me, man. He was really good Yeah. with his stock delivery जो है ना, वो जो कटर मारता है और सीधी लग के बाहर निकलती है. बहुत फिट है वो. बहुत Pitches on leg stump, cut sharply away from the right hander. Off stump के भी बाहर ही जा रही Yeah. होती है वो. Yeah, it clips top of off. He removes Max O'Dowd with his 7 delivery, and he had delivered with क्या कहते हैं 1 for 8 in 2 power play overs, 1 for 21 in 3 power play overs. आखिरी ओवर में पिट गया, आखिरी over में. हल्का सा पिट गया था वहां पे. Then he comes back and takes 2 death overs wickets. एक ही डेथ ओवर था, उसके तो 2 विकेट की. Netherlands were bowled out. He ends up with 3 for 24 in 3.5 overs. Really good. What Salman a Mirza. fantastic World Cup debut for Salman Yes. Mirza. And Abrar. Abrar never featured in 2024. And Fahim. And for whom? तीनों के डेब्यू थे. अब्रार बेचारा तो खेले बगैर वापस आ गया था पिछले T20 वर्ल्ड कप से. 3 डेब्यूटेंट्स ने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस. खैर राणा जी फर्क तरीकों से एक्सपीरियंस्ड है. साहिबजादा का भी फर्स्ट T20 साहिबजादा का भी डेब्यू था. 4 डेब्यूटेंट्स. साइम का भी ऑलमोस्ट ही कर लो, कितना ही खेला है पिछले वाले में. बाबर और रिजवान ओपन कर रहे थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वहां पे तो. यही तो मेरा आर्ग्यूमेंट है और यही मुझे तप है. ये मैं Yeah. कब से कह रहा हूँ, योर सीनियर प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप. उसमें से सिर्फ एक ने स्टेप अप किया, राणा जी ने. Yeah. बाकी किसी ने नहीं किया. और पता- मरवाने वाले थे. फुल ऑन मरवाने वाले थे. पाकिस्तान बता रहा हूं गई थी, बाहर थे ये. खत्म. राइट? शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी कैंपेन. My God यार. Yeah, but then again, this is what makes World Cup special, especially the T20 World Cup. नहीं वो तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही मजा आया. लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पाकिस्तान को देखते हो, आपको तब भी चढ़ती है यार, ये क्या है यार, ये क्या टीम है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है. या वाकई. और बाकी शाहीन को इस चीज की समझ आ जानी चाहिए थी कि आई नीड टू बोल बैक ऑफ अ लेंथ एंड वेरी माय पेस. अगर तुम्हारा आपके पास 2 किस्म के स्लोअर वंस है. कटर भी कराते हो, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन भी कराते हो. कराओ ना यार. If your Lahore Qalandar's ex-teammate and new to international cricket, Salman Mirza figured it out, you should have figured it out. या बाकी आई डोंट थिंक इतनी कोई बुरी टीम खेली थी. वी न्यू दैट दे विल स्टिक विद बाबर एट 4. ठीक है, एंड देयर आर आर्गुमेंट्स टू बी मेड. हां, फेल सेफ बैटर हो सकता है, मगर नहीं हुआ. और वरना तो हम दोनों को लगता है कि वो 4 पे मिडिल ओवर स्पिन बॉलिंग नेगोशिएटर हो ही नहीं सकता. नहीं हो बैशर तो दूर की बात है, वो स्पिन नेगोशिएटर भी मसला है उसका. स्पिन पे ही आउट होता है. Yeah. रोल ऑफ Yeah. विकेट लेता है उसकी. उसको ही छक्का मार रहा था ना, आर्यन दत्त को मार रहा था. क्यों मार रहा था? Yeah. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, उस वक्त मार क्यों? And in the games that are going to be played at Sinhalese Cricket Club from here on, Salman Ali Agha won't be confused by the deck. अब उसको पता होगा कि this grass doesn't mean much. I still need to एक और ही bat है ना first. इधर हमारी गेम. हाँ, एक और है. वरना टीम तो ठीक थी. I mean, सलमान मिर्जा, अब्रार और शाहीन ने ही स्टार्ट करना था, you know. और हमें पता था बाबर होगा एट 4. Yeah. अब ये है कि इवन इफ बाबर लूजेस हिज स्पॉट, दे माइट ट्राई फखर अहेड ऑफ नाफे. I don't Yeah. agree with that. It could work. I don't agree with that. Honestly, at this moment, I feel that Fakhr can probably add a bit more value than Babar Azam. But then again, I'm waiting to see whether or not he can fulfill his role as well. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक और मैच देकर देखो. अगर फिर फेल होता है यार, तो मैं नहीं समझता कि इसको रिटेन करनी चाहिए अपनी जगह. There is no evidence. यार, मैं तो सोच रहा हूँ एक और गेम भी क्यों देखे. वो unbeaten 50 of 36 comes in a game where Pakistan scored 207. And हाँ, उस पे उसको कई जगहों पे credit भी दी है. But is that the top end performance at number 4? So Is that the best he can do? So the next match is against the USA in Sinhalese. Fakhr could work against Mohammad Mohsin. Yeah. That's about it. उसको तो पेल सकता है ना वो. Lekin I still give Nafe a go, bro. लेकिन ये नहीं करेंगे. Yeah, I mean, the USA have got 2 really good spinners in Mohammad Mohsin and क्या नाम है, हरमीत. और वो दोनों एक स्लो लेफ्ट आर्मर और एक रिस्ट स्पिनर है. इनसे दोनों ही नहीं खेले जाते. और बाबर से नहीं खेले जाएंगे. Yeah. बाबर खेलेगा. खैर, नवाज and Shadab and Saim and Abrar, those guys need to come through in that game, right? हाँ, they do. वो उस पे अभी आते हैं. मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ. बाबर आजम अगर तो कर लेता है तो हम खुश ही होंगे. हमें डर ये, और हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि वो ये रोल नहीं कर सकता. And I feel if I was there, I would have given Nafe a go. I was like, जा बच्चे खेल, जा Nafe जी ले अपनी जिंदगी. अच्छा, तू USA वाले मैच में ला रहा है उसे. Yeah, bro. I think they'll stick with, and they probably should stick with Babar for one more game. Closure तो हासिल कर लो ना.
केड़ा क्लोजर? अब अगर वो अभी भी क्लोजर चाहिए तुम्हें? मुझे क्लोजर वैसे चाहिए तो नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक मैच के बाद तो नहीं हटा सकते। वो पूरा टूर्नामेंट क्लोजर हो जाना है ब्रो। टूर्नामेंट क्लोजर ही ना हो जाए, यही तो मैं कह रहा हूं। या खैर डर तो लग रहा है इस चीज डर है, बहुत डर एंड द है। सीनियर गाइज डू फेल हार्ड, इसमें कोई शक नहीं। शाहीन, शादाब ने बॉलिंग सही कराई है, नन फॉर 26, और मैंने लेकिन डिफेंड ये भी किया है। ही इज गॉटन अनलकी, एक मिसफील्ड हो गई, एक नोमी पॉइंट्स लैंड में गिरी, मगर कैच भी तो शादाब ने छोड़ा ना स्कॉटी एडवर्ड्स का। और उसके बाद बैटिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग तो बहुत गंदी थी। सो शादाब, नवाज, शाहीन एंड बाबर। स्कॉटी एडवर्ड्स वाज ऑन 24 व्हेन शादाब ड्रॉप्स हिम। ही डज स्कोर व्हाट 37 और समथिंग। आप नीदरलैंड्स को जल्दी किल कर सकते थे, ऑल्दो अगर ये पाकिस्तान मैच हारता द बैटिंग वुड हैव बीन रिस्पांसिबल। बाबर, हाँ 100%। बाबर, शादाब, नवाज, शाहीन, 4 सीनियर प्लेयर्स ऑल फील्ड। डेब्यूटेंट्स राणा जी को डेब्यूटेंट कहना फनी है। नहीं, डेब्यूटेंट इन द T20 वर्ल्ड कप। 5 परफॉर्मेंस थे ना, 4 डेब्यूटेंट्स। राणा जी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद एंड साहिबजादा फरहान एंड साइम, दोस आर द परफॉर्मेंस। साइम अयूब भी कितना ही खेला। अच्छा, मैं भी वैसे कितना मनहूस हूं। मैंने लाइव पे बोला कि इज साइम अयूब ऑलरेडी द प्लेयर ऑफ द मैच व्हेन ही इज ऑन 24 ऑफ 12। नेक्स्ट बॉल गॉन। और फिर राणा जी वाज इवेंचुअली द प्लेयर ऑफ द राणा मैच। जी ने कहा होल्ड माय लस्सी। वो अब किंग ऑफ फूल नगर बन गए भाई। प्रिंस हमारे दिलों के तो वो राणा जी थे। माय गॉड, गाने भी हम उनके लिए गाते आ रहे हैं, मगर कल जो वो अपनी पेडिग्री दिखा गए हैं ना, yeah, you know what, he's really come of age, bro. he has. He himself told us in that interview for Pro Sports, जो कि आपको आर्काइव्स में ढूंढना चाहिए, जाके सुनो। मेन पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट में होगा, bet you didn't know, yeah, something like that. नहीं, in the house, in the house, in the house, Rana Fahum in the house. उसमें जाके जरा क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा राणा जी वहां पे। And he said in that interview that he was quite honest about it, that he doesn't think he's fulfilled his potential. I think so too. I think every Pakistani thinks. वो कह रहा था कि यार मैं मतलब इससे बहुत बेहतर कर सकता था, और अब एक नया मौका मिले अंडर माइक हैसन, राणा फहूम ऑन हो गए। I just feel, I think he's understood his role finally in the team. This is राणा जी। कल तो कुत्ते हो गए थे यार, कुत्ते तो हो लोगन जाते वैन बीक का जो डांस है ना, राणा जी ने कहा इधर मैं अपनी गाड़ी पार्क करूंगा, मैचिंग क्लोथ्स में निकलूंगा गाड़ी से, और फिर फनी आदमी तो है वो। फनी तो राणा जी, आवाज भी पता नहीं राणा जी की स्वीट सी जगह से निकलती है ना। इट्स जस्ट ही इज अ ब्यूटीफुल गाय। यार राणा जी का सीन ये है ना कि आई थिंक ही इज अंडरस्टूड हिज रोल परफेक्टली नाउ। दिस इज राणा जी यार, लोअर ऑर्डर डेथ ओवर स्पेशल, आई मीन डेथ ओवर हिटर, पता नहीं क्या पावर हिट जो भी है, लोअर ऑर्डर हिटर स्लैश फिनिशर। यस, फिनिशर वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। एंड अगर आपकी जरूरत पड़ी तो एक आधा ओवर निकाल लेंगे, दैट्स हिज रोल। एंड यू नो व्हाट, ही वाज प्रीटी गुड इन द फील्ड टू। हां, ही वाज रियली, मतलब ही वाज कवरिंग ग्राउंड। शुरू में तो थोड़े से डरे हुए थे, पकड़ ली थी वो भी। हां, राणा जी को मेरे लिहाज से आई थिंक ही शुड हैव ट्राइड वन ओवर ऑफ राणा जी early on. He would have been good on this. It wasn't as big of a blunder as not bowling Saim enough and introducing Saim an eternity later. I don't know, bro. वो राणा जी खा भी सकते थे। अब पता है मुझे और ताप इस चीज पे थी कि यार पिट रहे नवाज, डोंट बोल हिम आउट। साइम पड़ा हुआ है आपके पास। चलो शादाब पिटा तो नहीं ना, नन फॉर 26 किया उसने, नवाज तो कल पिटा। इट वाज सो शॉर्ट एंड सो वाइड सो कंसिस्टेंटली कि समझ नहीं आ रही थी। So yeah, I suppose that Pakistan can breathe a big sigh of relief, as can Pakistan fans. And now they need to learn from this game. अपने दिमाग में यही अपने आप को पता है कि look, we've basically won the USA game this time from 2024. And now we need to ensure that we beat the other 2 associate nations. Super 8 में तो पहुंचो ना यार, वहां तक फिर गेम आई तो फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्दर होगी। But first things first, lock those 2 games down. Hopefully we've seen the biggest scare from a Pakistan perspective. Hopefully यूएसए गेम थोड़ी सी फंसेगी, लेकिन आई थिंक फंसनी तो दोनों गेम्स। लेकिन आपका PTSD भी बोलेगा, मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आई थिंक पाकिस्तान इज गोना विन। मुझे डर नहीं लग रहा। हाँ, मतलब आई फील कि आफ्टर दिस परफॉर्मेंस दिस गॉट टू बी अ गुड वन, क्योंकि दिस वाज ट्रैशी क्रिकेट, राइट? वी से दैट इट वाज टॉप लेवल एंटरटेनमेंट, बट इट वाज रियली पुअर क्रिकेट। आई डोंट थिंक अच्छी कोई गेम खेलेगा पाकिस्तान, दे विल मैनेज टू गेट ओवर द लाइन, जीत जाएगा। That's what I feel. Because they need to once they get to the Super 8s, if they get there, उसके बाद फिर you need to win 2 out of 3. Then you bring in Usman Tariq. Then you bring in Uzi Tariq as well. तब तक शायद surfaces भी थोड़ी और tired हो गई हों, जरा और slow हो गई हों। लेकिन डिपेंड करते हैं ना हम कहाँ खेल। और देखो कजन सैल की एक चीज तो है, टॉस तो हमेशा जीतते हैं। ये पता नहीं क्या कजन सैल अगली दफा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट, या अगली दफा अगर टॉस जीते तो ये पक्की बैटिंग करेंगे, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नहीं करेंगे। और अभी तो हमें फोरकास्ट वगैरह का नहीं पता, शायद आगे कोई बारिशें भी हो जाएं, who knows?
रात का मैच है, ड्यू आ गई ना सिनेलीज में, फिर क्या Yeah. करेंगे? ये भी इन्हें 2-3 दिन है सिनेलीज में, देख लो ड्यू आ रही है कि नहीं आ रही। प्लीज चेक कर लो अच्छे तरीके से, मेक फ्रेंड्स विद द ग्राउंड स्टाफ, यू नो, उनसे टिप्स वगैरह लो। यूएसए तो अभी आ रही है वहां पे, या पहुंच ही गई होगी आज, बट आपके पास तो थोड़ा सा एडवांटेज है, एंड यू नीड टू एक्लेमेटाइज टू दीस कंडीशंस, बिकॉज़ लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान हैव गॉट अ वेरी फेवरेबल ड्रॉ। फेवरेबल ड्रॉ Yeah. एंड एन एडवांटेज ऑफ प्लेइंग योर मैचेस इन श्रीलंका, जहां पे आप पहले भी खेल रहे हो और अभी खेल रहे हो आप। बिल्कुल। एक ही वेन्यू नहीं है एक, लेकिन एक ही जगह पे। एक ही जगह पे, there's no travel fatigue, Yeah. आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी, आपकी ये हक में जाती है चीज। प्लस the three best teams in this competition are India, South Africa and Australia. You won't draw any of those three teams in the Super 8 stage. अच्छा, मैं Possible ही नहीं है। मैं पता हूँ ऑस्ट्रेलिया थोड़े से हेजलवुड इंजरी के बाद उनके चांसेस हेवीली डिमिनिश If होंगे। I were to- I would rank South Africa above Australia now. I agree. मैं भी अब साउथ अफ्रीका के लिए जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। सो रिवाइज कर दो हमारी टॉप 4 की सेमीफाइनलिस्ट की पिक्स। We're going- इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। एंड अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तो जीत रही है ब्रो। अच्छा, जीत रही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ठोक गए हैं वो। या चलो देखते हैं फिर 32 आगे। of 30, 6 ओ इजी लाइफ ब्रो, काफी आराम से मार गए। और पता है कौन चल रहा है? कैसे हो चैपमैन? ओह 27 of 14। चैपी, कैसे हो चैपमैन? जिसने रेलू कट्टे पे मॉक ऑक्शन नहीं देखा, वो जाके देखे जरा। चैपर्स पे मैं आई वेंट हेवी ऑन चैपर्स। और बाकी सबको ये भी बता दूं कि एवरी नाइट आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट गेम आई विल बी लाइव ऑन कॉमबॉक्स इंग्लिश with one of the people that we have in our team. तो वो वाले Every shows भी night. देखो every night, हर रोज। यार डैम बहराम, मॉक ऑक्शन कब करना है? ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, कल तो हम सोचे थे पीएसएल वाला करें। नहीं, मॉक ऑक्शन हमें ऑनलाइन ही करना पड़ना है। हाँ, और तुम रात को लाइव जाते हो? उसके बाद करना पड़ना है। तो कितने बजे? 12 बजे रात को? I suppose so. आई सपोज नॉट सो। मॉक ऑक्शन में कितना टाइम लगता है? 4-5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे हाँ लगते हैं। जी। 4-5 घंटे। तो आपने टीमें ऑक्शन करनी है और क्या होना है? असल ऑक्शन 11th को है। हाँ, डैम, 10th को यूएसए गेम है। देखना पड़ना है। कल का ही टाइम है। कल फिर पता चलो नहीं। चलो We'll discuss that. But anyway, I think मजे का शो था ये, हाँ। and we could not record one on it. This game just literally it delivered so many emotions and so many क्या कहते हैं, turning points. It ebbed and flowed. रोलर कोस्टर ब्रो। हाँ, roller coaster तो था, but it ebbed and flowed awkwardly. It was weird. यूं जाके यूं। हाँ, ये भी नहीं, वो कोई जो आराम से कर्व्स होते हैं ना, वो कर्व्स नहीं थे, ये नहीं। सीधे ड्रॉप ऑफ्स थे। बिल्कुल, वो ठक ठक। free falls and steep inclines. Yeah. That's what this game was, and I think the Netherlands वाली team जो है, the Dutchy boys, they're gonna win a game or two over here. Netherlands, Yeah, हाँ, अच्छे नामीबिया लगे वाला मुझे। तो होपफुली जीत ही जाएंगे। I do Hopefully, think the क्यों कह रहा हूँ? Netherlands are well equipped to They're a good do team, well. they're a decent team। Yeah, मुझे बुरे नहीं लगे, वो अच्छा खेले हैं वो काफी। So shout out to them as well. And I think that wraps things up. हाँ, यूएसए वाली गेम पे हम लाइव होंगे कल। प्रॉब्ली पीएसएल वाला पॉडकास्ट भी मिलेगा और मॉक ऑक्शन भी कभी करना है। आई डोंट नो कैसे करना है, कुछ सोचते हैं इसके ऊपर। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और फॉलो अस एवरीवेयर भी कर दो। Yes, sir. उसके अलावा जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट थ्रू पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। और उसके अलावा पोस्टर्स खरीद Yeah, खूबसूरत पोस्टर्स है, खरीदो फौरन। हाँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बॉय कैसा, और रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। होए।